Hello students, today we will discuss third chapter. The name is Public, Private and Global Enterprises. In the live session I have discussed already with you that business is divided into three categories: public, private and joint sector. And private sector we have discussed in the last chapter, and in this chapter we will discuss public sector. Public sector is divided into three parts: departmental undertakings, statutory corporations and government companies. Let me clear you more about public sector. As public sector enterprises are those undertakings which are owned and managed by government. For example, Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation and Postage and Telegraph Department, Railways. These all are owned and managed by government departments. So we will discuss the first topic, that is departmental undertaking, as this is the oldest form of public sector enterprises, considered as one of the department of government. It has no separate existence than government. Its function and overall control of ministry or department of government. Everything is controlled by government in this case, and it has separate ministry of department. For example, railways, defense and post and telegraph, broadcasting, telephone services, etc. Let me clear you the meaning of departmental undertaking by discussing features. Here the first point is they are accountable to ministry since their management is directly under concerned ministry. सारा का सारा काम concerned ministry को ही accountable है, to whom they have to respond. और the funding of these enterprises come directly from government treasury. इसका जो भी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से ही आता है और इसके लिए स्पेशल एक बजट पास होता है. एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम बजट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बजट में इसका अलग से अप्रोप्रिएट किया जाता है. जो भी ये रेवेन्यू अर्न होती है इस इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाती है. दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एक्टिविटीज. मीन्स अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय गवर्नमेंट and controlled by government. The employees of enterprises are government servants and their recruitment and condition of service same as that of other employees directly under the government. Means जो departmental undertaking के employees हैं, those employees are considered as government employees as other employees working under the government. They are headed by Indian Administrative Services, that is IAS, and civil servants who are transferable from one ministry to another ministry. As we know, staff of departmental undertakings are civil servant and are recruited and compensated as per the rules of civil servants. Civil servants को recruit करने के लिए जो भी rules and regulations है वही departmental undertaking के employees को recruit करने के हैं. It is generally considered to be a major subdivision of government department and is subject to direct control of ministry. Government department को divide किया हुआ अलग अलग departments में, that are the departmental undertakings we know, and subject to direct control of concerned ministry. If we talk about merits of departmental undertaking, the first point here is easy formation. It is very easy to form departmental undertaking as no registration is compulsory in this undertaking. Effective control because it is totally direct and centralized from the government, as departmental undertaking is run by ministry itself. Next point is optimum utilization of funds. There is proper utilization of funds as financial matters are subject to मिनिस्ट्रियल सैंक्शन. जो भी फाइनेंशियल मैटर है उसमें मिनिस्ट्रियल सैंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है. इसका अलग से बजट पास होता है, राइट. जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल है, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्ट्री. Here the next point is accountability, means to whom this departmental undertaking is concerned with. Is whatever the efforts made by this undertaking is to be discussed in the parliament, so there is totally public accountability. There is direct parliamentary control on this undertaking. Here the next point is public revenue. Whatever the revenue generated from this undertaking is deposited directly in the treasury of government. So these undertaking help to increase the government revenue. गवर्नमेंट की रेवेन्यू इन अंडरटेकिंग से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें रेलवे की जितनी भी हमारे पास टिकट के इनकम जनरेट होती है, दैट इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू. गवर्नमेंट की रेवेन्यू इससे इंक्रीज़ हो जाती है. और इफ़ यू टॉक अबाउट सीक्रेसी, whatever the activities departmental undertaking are doing can be kept highly secret, as government can avoid disclosure on the plea of public interest. Public interest को ध्यान में रखते हुए वो इन सारी चीज़ों को भी secrecy maintain कर लेता है.
Due to secrecy, only the most sensitive areas, that is like defense, is operating as a departmental undertaking. Now let's discuss demerits of departmental undertaking. Here the first point is inflexibility. As the departmental undertaking works on strict parliament control, there is too much political interference, ministries interference, top officials, so it is treated as one of the government office. दिस रिड्यूसेस इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग. ये जो अंडरटेकिंग है अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं कर सकती, इसके ऑपरेशंस में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी एफिशिएंसी नहीं आ पाती, क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद नहीं लेती, सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होता है. जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि इसके जो ऑफिशियल्स हैं, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दैट आर सिविल सर्वेंट्स. सो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू. जो भी उनकी रेवेन्यू है तो सारी की सारी गवर्नमेंट डिपॉजिट ट्रेजरी में जाएगी. तो इसमें वो सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता. तो इनका जो भी वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं और जो उनका रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक. नो डाउट दे आर गेटिंग सैलरीज, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन. तो इनको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहती. जनरली द प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स. सो एम्प्लॉयज़ भी इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करते, वो इतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते, अपनी एबिलिटी को बेस्ट यूटिलाइज नहीं करते. Here the next point is lack of financial autonomy. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी इन्वेस्ट करती है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में करती है, तो दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो उसके जो भी बजट है उसमें सारा का सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. दे आर नॉट अलाउड टू यूज द रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू बी डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी. फाइनेंशियली ऑटोनॉमी इनको बिल्कुल नहीं है. फाइनेंशियली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कब बजट पास करेगी, गवर्नमेंट कब इनको रेवेन्यू जो है यूटिलाइज करने के लिए देगी, वॉट एवर. तो जो इनके भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते. दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. As the undertakings are managed by government these officials are already overburdened with paperwork. They spend maximum time to answer the queries from parliamentary on ministry. So the management is not as much efficient. Here the next point is red tapeism and bureaucracy, means delay in decision making. Red tapeism and bureaucracy का मतलब क्या है? Whatever the decisions to be taken becomes delayed due to so many formalities. Decision in departmental undertaking are delayed due to administrative formalities, paperwork and procedures. इनोवेशन एंड बोल्ड अप्रोच, जो जिसमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं लिया जाता. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज. And our next category is statutory corporation. And statutory corporation refers to such organizations that are incorporated by special act of parliament. Statutory corporation special act pass होता है parliament में. Statutory corporation is a body corporate formed by special act of parliament by central or state legislature. It is fully financed by government. Finance इसमें सारा का सारा government की तरफ से होता है. उसके parts, objectives, limitation, everything is clearly described in that particular act which is passed in parliament. For example, Indian Airlines, Air India, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Food Corporation of India, Oil and Natural Gas Corporation. In these all undertakings, a special act has been passed in Parliament, and all powers, objects, limitations of this particular undertaking is clearly described in the act which has been passed in Parliament. Now let's discuss features of statutory corporation. As it is created by an act of parliament, central or state legislature, whatever the powers, objectives and limitation of public corporation, all are defined in this act only. It operates under control of central or state government. Central और state government ही इसको control करती है, right? It has separate legal entity, इसकी अपनी एक separate identity है, and it gets incorporated automatically when the act is passed in the parliament. As कि जो एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से उसी से इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, इसके ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं. इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. इसके सारे ऑपरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं जो गवर्नमेंट ने ही नॉमिनेट किए होते हैं. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अनदर नेम ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन.
corporation, and the public corporation has its own rules of recruitment and remuneration for its staff and employees. ये जो कॉरपोरेशन है अपने एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ को जो रिक्रूट करती है और रेमुनरेशन पे करती है, यानी कि कंपनसेशन देती है, जो उनको सैलरीज पे करती है, इस कॉरपोरेशन के अपने रूल्स हैं, राइट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, उसको एडमिन करना, कंट्रोल एंड मैनेज करना। इसमें इसको इंडिपेंडेंस है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, पॉलिटिक्स का या गवर्नमेंट का इसमें इतना रोल नहीं रहता, ये अपने रूल्स खुद ही फ्रेम करती है। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज सर्विस टू द जनरल पब्लिक। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है, उनको उनका वेलफेयर के लिए ही ये मेनली फोकस्ड होती है। एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट or state legislature for its operation. It has to submit its annual report on its working. Whatever the work or operations done by this undertaking is accountable to parliament. ये जो भी efforts और जो इसके operations हैं, everything is to be shown to the parliament. The accounts of public corporations are generally audited by controller and auditor general. इसके जो accounts हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करता है, चेक करता है। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस इट्स मेरिट्स। Here the first point of statutory corporation merit is administrative autonomy. If you compare this corporation with the government company or departmental undertaking, it has quite more autonomy, more independence for its administration activities, for its managing activities. Corporation is able to manage its affairs with independency and flexibility. अपनी इंडिपेंडेंस से, लिबर्टी से, और ये कॉरपोरेशन अपने सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है और इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम रहती है और ये अपने हिसाब से अपने चेंजेस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। Here the next point is quick decision making. Statutory corporation is relatively free from red tapeism, or there is less file work, less formalities to be completed before taking decision. As because in statutory corporation इतनी ज़्यादा formalities नहीं होती और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है। जो भी डिसीजन इन्होंने लेना है तो उसके लिए इनको इतना ज़्यादा पेपर वर्क एंड फाइलिंग वर्क नहीं करना पड़ता, रेड टेपिज्म भी इसमें नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सर्विस मोटिव। एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो भी इसकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की एक्टिविटीज़ हैं ये पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं और इसका मेन मकसद क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट स्टाफ। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कैन हैव देयर रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद डिसाइड कर सकते हैं, इनके अपने रूल्स होते हैं और ये बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, अट्रैक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ को, उनकी वर्किंग को, उनको एफिशिएंट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ के लिए। तो इट कैन ऑल्सो हायर एफिशिएंट स्टाफ। हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स और अलग अलग ग्रुप्स के जैसे कि कंज्यूमर, लेबर, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, लेबर्स एंड नीड्स ऑफ बिजनेस एज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज। तो इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज बाय दीज एक्सपर्ट्स as a part of board of directors. Here are the limitations of statutory corporations. Here the first point is, in reality a statutory corporation does not enjoy as much operational flexibility as stated above. All actions are subject to many rules and regulation. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में, एक्ट्स में शो होती है, रियलिटी में इतनी नहीं होती। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही है जब बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस की बात होती है। तो वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, जब ह्यूज फंड्स की बात आती है तो उसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही है। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। जब पब्लिक डील तो करप्शन आ ही जाती है इसमें। गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग अपॉइंटिंग एडवाइजर्स to the corporation board. This curves the freedom of cooperation in entering into contract and other decisions. If there is any disagreement, the matter is again taken in front of government for making it final. तो this further delays action. मेन यहाँ पे limitation क्या है, हमारा जो decision making है वो बहुत ही ज़्यादा delay होता जाता है, बहुत ही complicated process है। They don't have any freedom to enter into contract themselves. Whatever the decision will be finalized
only with the intimation of government. Here, the next category that comes under public sector, that is government company. As in the last chapter, we have discussed joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो सारे फीचर्स हैं वही सारे गवर्नमेंट कंपनी है के हैं, बट लेट मी क्लियर यू द मीनिंग. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of paid up capital is held by central government. कि मीन्स जो भी कंपनी है अगर उसके 51% से ज़्यादा शेयर या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या बोथ पार्टली सेंट्रल एंड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ऑन कर लेती है यानी कि बाय कर लेती है, तो दैट कंपनी बिकम्स गवर्नमेंट कंपनी. सिंस गवर्नमेंट इज़ अ मेजर शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन कंपनीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का ही रहता है, तो इसलिए इनको गवर्नमेंट कंपनीज़ कहते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी प्रोविजंस हैं सारी की सारी इनके ऊपर भी एप्लीकेबल रहती हैं. ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2013 आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. कुछ हैं जिनके ऊपर मैंशनड होता है, अदरवाइज मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर वही सारी प्रोविजंस फॉलो होती हैं जो हमने लास्ट चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए रीड करी हैं. राइट. गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. इन कंपनीज की जो पेड अप कैपिटल है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल. द शेयर्स ऑफ कंपनी हैव परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इस कंपनी के जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो किस नेम से करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से. गवर्नमेंट कंपनी की कुछ एग्जांपल्स हैं: भारत हैवी स्टील्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. Let's discuss features of government company. Here the first point is registration. Government company gets incorporated under Companies Act 1956. सेम जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी 1956 कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होती है, सेम गवर्नमेंट कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही है. ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी एज वेल. गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. गवर्नमेंट इन सारी प्रोविजन से अपने आप को एग्जम्प्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनरशिप. गवर्नमेंट कंपनीज होली और पार्टली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट. या तो सारे के सारे शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं या कुछ हद तक पार्टली पेड अप कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट की होती है. शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज ऑन एंड मैनेज बाय Government of India in the name of President, as we have discussed earlier. Here the next point is management. Government companies managed by board of director who are appointed nominated by government. Government ही board of directors को nominate करती है और वो board of director company को manage करते हैं, और बाकी major shareholders. The government has authority to appoint majority of director. Government के पास maximum authority होती है कि वो मैक्सिमम डायरेक्टर्स कौन से चूज करे, कौन से अपॉइंट करे. ऑल द अथॉरिटीज विद अलोंग विद इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. एज जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था. गवर्नमेंट कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. गवर्नमेंट कंपनी अपने कंपनी के नेम से शेयर्स खरीद सकती है, बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, और कंट्रैक्ट्स में भी जो एंटर होगी वो गवर्नमेंट कंपनी अपने कंपनी के नेम से होगी, नॉट विद द शेयर होल्डर्स, विद द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स एक्सेट्रा. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरिंग पावर्स. उनके पास पूरी बोरिंग पावर्स होती हैं. इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज इज अनदर नेम ऑफ शेयर्स. यू कैन से शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से वो कैपिटल रेज कर सकती हैं. इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी. कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जो भी इनके पास रेवेन्यू होती है वो सारी रेवेन्यू यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट स्टाफ. द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ. कौन से एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना है, क्या रेम्यूनरेशन पे होगा, everything is decided by company itself. Government companies itself, they are not governed by civil services rule. Civil services rule जैसे कोई भी principles इसमें applicable नहीं होते. Here the next point is accountability. The government companies are accountable. The government companies are accountable to ministry or department concerned. Its annual report is represented and discussed in the parliament or state assembly. ये जो कंपनी है इसने भी अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को जो भी रिपोर्ट से सबमिट करनी होती हैं पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं. लेट्स डिस्कस मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. हियर द फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस.
गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता इन कंपनी में. इट and functions really and smoothly under the general vigilance of government. No doubt, whatever the functions performed by these company are under the vigilance of government. Government की vigilance उनके ध्यान में ही होता है. Whatever the work is going on, suitable changes can be introduced whenever needed. जब भी कोई changes की requirement Companies Act के according, then these changes are introduced. Here the next point is greater flexibility. Government company is managed, financed and audited just as any other private company. It can therefore secure greater flexibility. गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज और फाइनेंस करने वाले और जो भी इसमें ऑडिटिंग होनी है वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही सब कुछ होता है, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज वॉट एवर वी वॉन्ट. Here the next point is efficient staff. Government company can have their own rules and regulations regarding recruitment and remuneration of employees. Employee को recruit करने के लिए, उनको remunerate करने के लिए इनके अपने ही rules हैं. They can appoint professionals and specialized people by offering better services and salaries. गवर्नमेंट एज सच इतना इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो ये अपने रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन भी इन्होंने खुद ही डिसाइड करनी है, तो ये अपने प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं उनको बेटर सैलरी ऑफर करके, तो इनका स्टाफ एफिशिएंट होता है. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेशन. Government companies can avail and accommodate managerial skill, technical know-how or expertise of private enterprise by conveniently collaborating with it. As this government company can hire managerial expert, technical expert of major private companies by collaborating with the private companies as well. उनके साथ private companies वालों के साथ collaborate करके उनके experts को hire कर सकती है, तो this is also one of the advantage. Just revise all the case study from Subhash. The book notes attached with this video. Revise all topics and complete your notebooks. Thank you.